to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss NVS Vice Principal Limited Departmental Competitive Examination (LDC) exam, 18th May 2025. Yesterday, the exam was completed. So today, I will discuss 60 questions related to the administration and finance part. I think that generally in question, from question number 91 to 150. Okay, so previous day exam was conducted, so today I will discuss answers of administration and finance part. 60 questions I will discuss. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Also next part also I will discuss the academic part and also language part. So follow my Facebook page, it is the same Asit Government Rule Guru. If you follow my page, then systematically you can get video links. My WhatsApp number is there, 8327782034. If any queries there, you can contact with me. So now I am going to discuss 60 questions related to the administration and finance. You see the question number 1. While proposing the name of a retired government servant to associate in the departmental inquiry, it must be ensured that such a defense assistant is not very busy and would be available to appear and perform his role without hampering the timely completion of the process of inquiry. So correct it, available. Okay, state the maximum number of cases which a retired government servant may accept to work as defense assistant at any given time. Options 10 cases, 7 cases, 3 cases, 5 cases. यहाँ पर आप याद रखिए, यदि कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में आप सोच रहे हैं एज डिफेंस असिस्टेंट, सो साइमल्टेनियसली ही कैन हैंडल 7 केसेस. ठीक है, यदि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी वर्क कर रहा है और उसको आप डिफेंस असिस्टेंट के आकार में लेना चाहते हो, तो ही साइमल्टेनियसली हैंडल 3 केसेस. Right? So just you remember, if the officer is in job and if you need the help of him as defense assistant, then simultaneously he can handle how many cases? 3 cases. But in case of retired government servant, so retired government servant can handle 7 cases as defense assistant in a time. So option यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज सेट अप एन ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस. इंडिकेट द नेम ऑफ दिस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑलरेडी सेटअप किया है एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस. आप देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. ठीक है, तो आप पोस्ट एक्ट 2013 देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है. यहाँ पर जो ऑप्शन है सी बॉक्स है, जे एंड कॉम, सी कॉम्प, मी टू. इट इज वेरी इजी. ऑप्शन 1 सी बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स. तो एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर यदि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ऑनलाइन कंप्लेंट एक्चुअली कैन बी लॉज्ड. सो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन 1. ये भी सब मेरा वीडियो देखिए, ये सब आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, द डिसिप्लिन अथॉरिटी अपॉइंट्स अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट और ए लीगल प्रैक्टिशनर टू फंक्शन एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस and veracity of articles of charge. Identify the specific rule in the CCA rules 1965
whereby a presenting officer is appointed. आप जानते हो कि जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, when disciplinary authority has decided that disciplinary proceeding would be initiated against the charged officer, then inquiry officer and presenting officer both appointed by the disciplinary authority, right? So presenting officer का क्या काम है? वो जितना भी फैक्ट्स है, जितना भी आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस लगा है चार्ज ऑफिसर के ऊपर, वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो हैंड ओवर करेगा इंक्वायरी ऑफिसर को। तो इसमें दिया है, देखिए 4 ऑप्शंस दिया है, वेरी इजी है। हम जानते हैं कि मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग जो होता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 का आप मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स रूल 14 है, ठीक है, मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स, तो उसमें रूल 14 ही आप देख लीजिए, क्योंकि रूल 17, रूल 15, रूल 14 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन सी ऑफ सीसीए रूल्स 1965, रूल 16 ये दिया है, 4 ऑप्शन है। तो यहां पर मैं बताया मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स रूल 14 है, तो ये रूल के हिसाब से इंक्वायरी अथॉरिटी एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोथ अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो बहुत इजी है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, सीसीए रूल्स 1965 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ऑन कंक्लूजन ऑफ ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, if it is clear that the government servants have committed an act of violation of code of conduct and it is deliberate and serious lapse, a self-contained memorandum shall be prepared or caused to be prepared by disciplinary authority, and the charged government servants shall be notified about such report of misconduct. A reasonable time is given to the government servant to explain his position. In the first instance, the time allowed to explain the position is one of the following. Clear? Indicate the correct position as per CCA rules 1965. यदि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो फैक्ट फाइंडिंग होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में एक्चुअली वेरासिटी ऑफ द केस, क्या जो इंसिडेंट हुआ है क्या वो सच है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो डिटेक्ट हो जाता है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सपोज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डिटेक्ट हुआ कि जो ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगा है वो सीरियस लैप्सेस एक्चुअली केस में है और कोड ऑफ कंडक्ट भी वायोलेट हुआ है, तो यदि ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, तब मेमो इशू होगा, ठीक है, मेमो इशू करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, मेमो इशू करेगा, ठीक है, सो कॉज नोटिस इशू करेगा, ठीक है। तो सो कॉज नोटिस में क्लियरली मेंशन होगा कि क्या क्या आर्टिकल्स लगा है, ओके, किस तरीके का चार्जेस लगा है, डिटेल्स वो सोकस नोटिस दे दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को। तो जब चार्ज ऑफिसर वो सोकस नोटिस को रिसीव करेगा तो वो कितना दिन के अंदर उसका जवाब देगा। व्हेन द चार्ज ऑफिसर रिसीव द सोकस नोटिस, देन विद इन हाउ मेनी डेज, ओके, ही कैन गिव द आंसर, ओके। सो आप देखिए क्लियरली मेंशन है 15 डेज, और ये भी एक्सटेंड होकर 45 डेज हो सकता है, मगर ऑथेंटिक रीजन देना है चार्ज ऑफिसर को कि किस वजह से, किस सर्कमस्टांसेस के वजह से वो एक्चुअली 15 डेज के अंदर जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। तो ऐसे जो 15 डेज नॉर्मली है, ये एक्सटेंड हो सकता है यदि चार्ज ऑफिसर रीजन देता है, ऑथेंटिक रीजन, वो 15 डेज एक्सटेंड हो सकता है, ऐसे अप टू 45 डेज तक एक्सटेंड होगा, बट नॉर्मली 15 डेज होता है। नॉर्मली जब उसको सोकस नोटिस मिलेगा, जिस डेट में वो रिसीव करेगा, 15 डेज के अंदर वो उसका जवाब देगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। आज पर सप्लीमेंटरी रूल 23 ऑफ टीए रूल्स, द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, the rate of deduction for each day of absence would be at the rate of. सप्लीमेंटरी रूल 23 जो रिलेटेड टू ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि कितना पीटीए परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस डिडक्ट होगा
यदि कंसर्न एम्प्लॉय एब्सेंट होता है, जो एम्प्लॉय को पीटीए मिलता है, यदि वो एब्सेंट होता है, पर डे जो पीटीए से परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस से कितना डिडक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है 1/30, 1/31, 1/26, 1/28, इट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 1/30, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, आज पर जो गवर्नमेंट रूल बिलो SR 25, सप्लीमेंट्री रूल 25, द रेट्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस shall be automatically increased by 25% whenever the DA on revised pay structure according to the 7th Central Pay Commission goes up by। तो आपको मालूम है यदि DA जो डियरनेस अलाउंस है, यदि जब वो 50% हो जाएगा, ठीक है, तब आपका ऑटोमेटिकली जो रेट्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस है वो 25% इंक्रीज होगा, ये अकॉर्डिंग टू द 7th सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी अभी डियरनेस अलाउंस 55% हो चुका है, अभी 2% बढ़ गया नहीं कि। तो जब डियरनेस अलाउंस 50% हो गया तब रेट्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस हाइक्ड बाय 25%। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वुड बी द ट्रैवल एंटाइटलमेंट बाय रेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिसर ऑन टूर ड्राइंग हिज पे इन ए पे लेवल इन पे मैट्रिक्स 12, पे लेवल 12 दिया है एंड अबव। तो ट्रैवल एंटाइटलमेंट क्या है, यदि जो ऑफिसर पे 12 में है, पे मैट्रिक्स 12 में है, यदि वो टूर में जाता है तो उसको किस तरीके का रेल ट्रैवल एंटाइटलमेंट मिलेगा। तो ये बहुत इजी है, AC1, फर्स्ट AC, ठीक है, उसको एंटाइटलमेंट होगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A of the Income Tax Act 1961 as of the assessment year 2025 under old regime of tax। ओल्ड रिजाइम टैक्स में आप देखा होगा कि जो टैक्स स्लैब है 2.5 लाख टू 5 लाख कितना है, 5% है, ठीक है। देन 5 लाख टू 10 लाख 20% है, ऐसे स्लैब है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो टैक्स रिबेट है अप टू 5 लाख, जो टैक्सेबल इनकम, यहां पर मैं लिख देता हूं अप टू टैक्सेबल इनकम, आपका टैक्सेबल इनकम सभी डिडक्शन के बाद, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो भी एग्जेम्पशन है सभी डिडक्शन के बाद, यदि आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख से, तब आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका टैक्सेबल इनकम सभी डिडक्शन के बाद, हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम मीन्स जिस इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज होगा। तो टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख देयर इज नो पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आप अभी कैलकुलेट कीजिए, ये जो सेक्शन 87A है रिबेट में, आपको मैं बोला अभी कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख टू 5 लाख 5% है, ठीक है। तो उसमें इसमें 2.5 लाख के ऊपर 5% आप निकाल दीजिए, 5% ऑफ 2.5 लाख, तो ये 12,500, तो ये रिबेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख, टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख देयर इज नो पेमेंट ऑफ टैक्स। सो इस केस में आपका जो टैक्स स्लैब था 2.5 लाख टू 5 लाख वो 5% था, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। 2.5 लाख टू 5 लाख 2.5 लाख है, उसका 5% 12,500, तो इतना टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मली व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, okay, by an individual assessee, return of income tax, right, by an individual assessee each year as per the Income Tax Act 1961। हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या ड्यू डेट होता है, जो रिटर्न फाइल का क्या ड्यू डेट होता है,
ये बहुत इजी है, ऑप्शन 2 31 जुलाई, राइट। तो बेसिकली 31 जुलाई हमारा ड्यू डेट होता है। यदि गवर्नमेंट एक्सटेंड करता है ठीक है, नहीं तो हमको इस ड्यूरेशन के अंदर हमको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, what is the standard deduction introduced for assessment year 2025-26 under the new regime of income tax? तो असेसमेंट ईयर दिया, तो फाइनेंशियल ईयर आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ऑलरेडी हम टैक्स पेमेंट कर चुके हैं और अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई 31 के अंदर, है कि नहीं। तो न्यू टैक्स रिजाइम में कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो 75,000 था, ये न्यू टैक्स रिजाइम दिया है। अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना है 50,000 है, ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजाइम में जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, अभी रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। जो न्यू टैक्स रिजाइम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 है, मगर ओल्ड टैक्स में वही 50,000 है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मैक्सिमम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A of the Income Tax Act 1961 under new regime of tax is admissible for which of the following amount? Maximum tax rebate under section 87A of the Income Tax Act 1961 under new regime of tax is admissible for which of the following amount? यदि हम वही फाइनेंशियल ईयर हम चलेंगे 2024-25 जो ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके हैं, अभी रिटर्न फाइल करेंगे, इसके हिसाब से जो स्लैब था ये था कि 3 to 7 लाख ये 5% था, 7 to 10 लाख राइट ये 10% था, 10 to 12 लाख ये 15% था, देन सिमिलरली 12 लाख टू 15 लाख ये 20% था, ऐसे स्लैब था, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बात बोल रहा हूं। तो इसमें इस केस में हम देखेंगे तो यहां पर तो कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट ईयर मेंशन नहीं किया है, इसके हिसाब से हम देखेंगे। आप देखा होगा डिक्लेयर किया था, यदि टैक्सेबल ये स्लैब है 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, 10 मोर देन 15 लाख 30%, ये था। क्लियर हो गए। अभी चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। यहां पर जो दिया है हमारा भाई फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को आप जाइए, अप टू 7 लाख ओके, देयर इज नो पेमेंट ऑफ टैक्स। यदि आपका टैक्सेबल इनकम, यदि आपका ये टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख, ठीक है। टैक्सेबल इनकम मीन सभी डिडक्शंस, जो भी एग्जेम्पशन है आप डिडक्ट कर दीजिए, डिडक्शन के बाद जो इनकम होता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, अप टू 7 लाख एक्चुअली टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख देयर इज नो पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आराम से हम रिबेट निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से देखेंगे, मैं अभी बताया था कि जो स्लैब था वो 3 to 7 लाख था, 3 to 7 लाख कितना था 5%, तो 4 लाख के ऊपर 5%, तो 5% ऑफ 4 लाख आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000। मगर यहां पर ऑप्शन नहीं है, हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को चलेंगे, ठीक है। मगर 25-26 को मैं बता देता हूं, यहां पर 20,000 है, क्लियर। ये 20,000 ऑप्शन यहां पर नहीं है, ठीक है। और एक बात, सपोज ये चीज हम देखेंगे, सपोज इसी ईयर देखेंगे, सपोज फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे 25-26, इस ये जो चल रहा है अभी, इसका असेसमेंट ईयर रहेगा 26-27, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 ये जो प्रेजेंट है, इसमें क्या है, स्लैब को चेंज कर दिया, स्लैब को क्या किया, अप टू 4 लाख एग्जेम्प्टेड कर दिया। देखिए 4 to 8 लाख कर दिया 5%, 8 to 12 लाख कर दिया 10%,
फिर 12 टू 16 लाख कर दिया 15%, ऐसे 16 टू 20 लाख कर दिया 20%, ऐसे कर दिया, और 20 टू 24 लाख गैप में ये कर दिया 25%, ऐसे कर दिया। 4 टू 8 लाख 5%, 8 टू 12 लाख 10%, 12 टू 16 लाख 15%, 16 टू 20 लाख 20%, 20 टू 24 लाख 25%, देन मोर देन 24 लाख हो गया 30%, ऐसे था स्लैब। तो इसमें क्या है, यदि हम फाइनेंशियल ईयर, इसमें रिबेट ये जो आएगा रिबेट, यदि फाइनेंशियल ईयर 25-26 को चलेंगे, इसमें रिबेट आपको 60,000 मिलेगा, क्योंकि यहां पर बता दिया कि जो टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख, अप टू 12 लाख टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख नील है, आप निकाल दीजिए। तो इसमें देखिए 4 टू 8 लाख 5% है, तो इसमें 4 लाख के ऊपर 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 लाख के ऊपर 5%, यहां पर हो गया 20,000, ठीक है। फिर 8 टू 12 लाख कितना है 10%, ये 4 लाख के ऊपर आप 10% निकाल दीजिए, ये कितना हो गया 40,000, तो रिबेट आपको कितना मिला 60,000 मिला, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो मैं 2 इयर्स को कंपेयर किया, दोनों में नहीं है, तो इट मींस यहां पर कोई, मैं एक फिफ्थ आंसर, मुझे लगता है आंसर 20,000 है, मैं तो कैलकुलेट करके आपको दिखाया, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर कोई ऑप्शन, कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया कि असेसमेंट ईयर नहीं दिया, ठीक है। तो ऑप्शन में यहां पर एक ऑप्शन ऐड कर दिया, फिफ्थ ऑप्शन, राइट। चलो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, who among the following has to ensure that every employee of JNV has got registered on the transfer portal and filled up basic information online? तो आप जानते हो जो जवाहर नवोदय विद्यालय का ट्रांसफर पोर्टल होता है, इसमें ईच एंड एवरी एम्प्लॉय दे मस्ट फिल देयर प्रोफाइल, दे मस्ट फिल देयर बायोडाटा। वो ट्रांसफर ऑप्शन चूज करेंगे नहीं अलग बात है, मगर सबको उनका प्रोफाइल बायोडाटा को फिलअप करना है। मगर ये कौन इंश्योर करेगा कि सभी एम्प्लॉइज एक्चुअली ऑलरेडी दे हैव फिल्ड देयर प्रोफाइल, ठीक है, ये कौन इंश्योर करेगा? ऑफिस सुपरिटेंडेंट और यूडीसी, सीनियर मोस्ट पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। आप जानते हो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का है। प्रिंसिपल अल्टीमेटली चेक करेगा कि मेरा सभी एम्प्लॉई पोर्टल में उनका प्रोफाइल, उनका बायोडाटा फिलअप किया है कि नहीं। फिलअप करने के बाद आप लॉक कीजिए, और उसको यदि आप अप्लाई कर रहे हो कि अप्लाई नहीं कर रहे हो ये बात नहीं है, आप लॉक कीजिए और उसका हार्ड कॉपी जमा कर दीजिए, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल इंश्योर करेगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। Which of the following is a characteristic of transformational leader? एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, तो बेसिकली आप प्रिंसिपल को लीजिए। फोकस ऑन डिसिप्लिन, मेंटेनिंग स्टेटस को, रिजिड अडेरेंस टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स। तो जो ये जो 4 ऑप्शन है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर से वो बिलीव करता है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स। आप देखिए जो पेडागोजिकल लीडर है वो प्रिंसिपल है, सो प्रिंसिपल ऑलवेज इंस्पायरिंग द सबऑर्डिनेट्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑलवेज मोटिवेट देम, ऑलवेज गाइड देम, always leading them, always solve their problems, always stand in front of them, okay, create congenial and very healthy atmosphere in the school, okay, because he is the captain, he is the commander। तो सभी जो अदर एम्प्लॉइज है उसका अंडर में काम करेंगे, वो कुछ लर्न करेंगे। अदर एम्प्लॉइज दे वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल इज द पेडागोजिकल लीडर, academic leader, administrative leader, okay, he is the responsibility for accounts, okay, and he is a trainer, right, he is a great motivator, he is inspiring for others, he is the role model for others, so बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? कंपनी सर्च इंजन, इंटरनेट वेब ब्राउजर। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, ओके, जिसमें हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं और कोई भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग फैमिली फॉर अवेलिंग फैसिलिटीज
under CS medical attendance rules. Okay, Central Civil Services Medical Attendance Rules 1944, 1944, and subject to conditions. A female government employee can exercise option to include her parents और हर पेरेंट्स इन लॉ फॉर हाउ मेनी टाइम्स. तो एक फीमेल एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन है, वो जो मेडिकल फैसिलिटी लेगा वो उसका पेरेंट्स का लेगा ना उसका पेरेंट्स इन लॉ का लेगा, उसके लिए ऑप्शन है. तो ये जो ऑप्शन है वो एक बार एंटायर सर्विस कैरियर में ले सकता है, वंस इन एंटायर सर्विस पीरियड. ओके, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. तो कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन है तो वंस वो एंटायर सर्विस पीरियड में ले सकता है कि वेदर एक्चुअली सी टेक द मेडिकल फैसिलिटी फॉर हर पेरेंट्स और फॉर पेरेंट्स इन लॉ. तो उसके लिए एक बार वंस अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो ऑप्शन लेगा. ऑप्शन 3 द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. एडुकेशन टीवी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 1961, 1962, 1959, 1960. तो ऑप्शन 3 1959 राइट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 17. द CPF अकाउंट्स ऑफ NVS आर ऑडिटेड बाय हु अमंग्स द फॉलोइंग? जो NVS का जो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स है उसको कौन ऑडिट करता है? लोकल फंड ऑडिट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर्स ऑफ समिति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो यहां पर लोकल फंड ऑडिट नहीं होगा, ठीक है. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा. C&AG ऑडिटर्स ऑफ समिति. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 18 को चलेंगे. समिति साल ऑन 31 मार्च ऑफ ईच ईयर make contribution from time to time to the account of each subscriber. What is the rate of contribution as percentage of emoluments as on 31st March each year? तो ये CPF के ऊपर है. तो इसमें what is the rate of contribution as percentage, ये CPF के ऊपर क्वेश्चन है. What is the rate of contribution as percentage of emoluments as on 31st March each? So it is option 3, it is 10%. राइट अभी भी NPS आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन 10% है. तो वैसा ही जो कंट्रीब्यूशन होता है एमोलुमेंट्स के ऊपर जो CPF एक्चुअली जो चूज किए हैं तो उनका भी कंट्रीब्यूशन एक्चुअली वो डिक्लेयर कर 31 मार्च इच में वो 10% है. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. आज पर नेशनल पेंशन सिस्टम व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर विथड्रॉल फ्रॉम इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट सब्जेक्ट टू कंडीशंस? देखिए जो NPS है, NPS में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो इंडिविजुअल पेंशन मीन्स जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है. तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसमें मैनेजमेंट से क्या गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आप मत लो, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है आप उसी से विथड्रॉ कर सकते हो. तो एंटायर कैरियर में सो ईच टाइम 25%, ईच टाइम आप कितना विथड्रॉ कर सकते हो? 25%, मगर एंटायर कैरियर में 3 टाइम्स. ठीक है, एंटायर सर्विस कैरियर कितना बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा? 3 टाइम्स. एंटायर कैरियर में 3 टाइम्स. ठीक है, तो यहां पर आपको आंसर मिल गया, इट इज 25%. तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उससे आप विथड्रॉ करोगे. ईच टाइम 25% है और एंटायर सर्विस में आप 3 टाइम्स विथड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ एडवोकेट्स एंड लॉयर्स. दे आर लाइसेंस्ड लीगल प्रोफेशनल्स हु कैन अपीयर इन कोर्ट एंड रिप्रेजेंट क्लाइंट्स. हु अमंग्स द फॉलोइंग रेगुलेट्स द लीगल प्रोफेशन and sets standards for their education? Bar Council of India, Supreme Court of India, Ministry of Law and Justice, Ministry of Home Affairs. तो इसमें आप देखिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, आप देखिए एक एडवोकेट एक्ट आया था 1961. ये जो एक्ट के हिसाब से जो एडवोकेट एक्ट आया था 1961 में,
ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। जो इसमें मैं बता देता हूं, जो एडवोकेट एक्ट आया था 1961 में, इसमें क्लियरली मेंशन हुआ था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्चुअली जो रेगुलेशन है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो एडुकेशन होता है, जो लॉ यूनिवर्सिटीज है, तो उसका जो स्टैंडर्ड्स को वो सेटअप करता है और जो भी लीगल प्रोफेशन को वो मैनेज करता है। ठीक है, मगर यहाँ पर कभी कभी आपका मन में होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नो नहीं है। जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली पॉलिसी को देखता है, लीगल पॉलिसी जो है, जो लीगल लेजिस्लेशन है, उसका वो वर्क है। ठीक है, तो होम अफेयर्स का यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो होम अफेयर सिक्योरिटी रिलेटेड आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका ये चीज नहीं है, वो कुछ एक्ट्स पॉलिसीज को रिफाइन करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक्ट के हिसाब से क्लियरली मेंशन है। जो भी लॉ यूनिवर्सिटीज है उसका स्टैंडर्ड सेटअप करता है और जो लीगल प्रोफेशन है उसको प्रमोट बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, when a government servant with a qualifying service between 1 to 5 years dies while in service, the gratuity payable to his family would be। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस हुआ है 1 to 5 years, डेथ हो जाता है, तो वहां पर डेथ ग्रेचुइटी मिलेगा। तो 6 times द एमोलुमेंट्स, 2 times द एमोलुमेंट्स, 12 times द एमोलुमेंट्स, 20 times द एमोलुमेंट्स। यहां पर आंसर होगा 6 times द एमोलुमेंट्स। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आप यहां पर थोड़ा देख लीजिए डेथ ग्रेचुइटी के ऊपर। यदि लेस देन 1 year सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस हम 6 months लेते हैं। ठीक है, एवरी हाफ ईयर को हम क्वालिफाइंग सर्विस लेते हैं। तो यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 1 year, 2 times ऑफ एमोलुमेंट्स मींस यहां पर एमोलुमेंट्स बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। और डॉक्टर्स वो भी होगा उनका नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, एनपीए भी ऐड होगा। यदि आपको एनपीए ये मेडिकल केस में एनपीए मिलेगा, अदरवाइज बीपी प्लस डीए। लेस देन 1 year, 2 times ऑफ एमोलुमेंट्स, 1 year और मोर बट लेस देन 5 years, 6 times एमोलुमेंट्स। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 5 years और मोर बट लेस देन 11 years, 12 times ऑफ एमोलुमेंट्स। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 11 years और मोर बट लेस देन 20 years, 20 times ऑफ एमोलुमेंट्स। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 20 years और मोर, देन उसका कैलकुलेशन देखिए, हाफ ऑफ एमोलुमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 monthly पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 33 times ऑफ एमोलुमेंट्स। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन यही था, 1 to 5 years के अंदर उसका डेथ हो गया, क्वालिफाइंग सर्विस था 1 to 5 years, डेथ हो गया, तो उसको डेथ ग्रेचुइटी 6 times ऑफ एमोलुमेंट्स मिलेगा। एमोलुमेंट्स इट इज बेसिक पे प्लस डीए, जस्ट बिफोर डेथ जो उसका बेसिक पे था और जो डीए था, अब उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, व्यू ऑफ मेंटेनिंग एडिक्वेट फीमेल टीचिंग स्टाफ इन जेएनवीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज पर ट्रांसफर गाइडलाइंस 2024। आप इनकरेक्ट को चूज कीजिए। तो इफ बोथ द पोस्ट आर वैकेंट, यदि दोनों पोस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर दोनों पोस्ट वैकेंट है, वन पोस्ट एक्चुअल और डीम्ड शैल बी ईयरमार्क्ड फॉर फीमेल एंड अदर केप्ट ओपन फॉर ऑल, ये ठीक है। यदि दोनों वैकेंट है, वन पोस्ट जो एक्चुअल डीम है वो फीमेल के लिए ईयरमार्क होगा, अदर ओपन होगा, करेक्ट है। इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड बाय फीमेल, अदर पोस्ट इवन इफ वैकेंट एक्चुअल और डीम्ड शैल बी ईयरमार्क्ड फॉर फीमेल, तो ये गलत होगा। इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड, ऑलरेडी सपोज आपका एसएसटी में ऑलरेडी 2 टीजीटीज है और इसमें एक फीमेल है ऑलरेडी और एक वैकेंट है और एक क्या है वैकेंट पोस्ट है, तो ये वैकेंट पोस्ट ओपन होगा। वन फीमेल है ऑलरेडी, वन तो वैकेंट है, तो ये पोस्ट ओपन होगा। ठीक है, मगर यहां पर क्या दे दिया कि वन पोस्ट तो ऑक्युपाई किया है फीमेल, जो अदर पोस्ट वैकेंट है वो भी शैल बी ईयरमार्क्ड फॉर फीमेल, ये गलत है। ठीक है, तो चलो थर्ड ऑप्शन, इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड बाय मेल, तो ऑटोमेटिकली यदि इसमें वन पोस्ट एक्चुअली मेल ऑक्युपाई किया है तो ऑटोमेटिकली अदर पोस्ट वो फीमेल के लिए ईयरमार्क होगा, ये करेक्ट है। इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड बाय फीमेल,
other post even if vacant actual or deemed shall be kept open for all. yes, यदि ये ऑप्शन है, यदि 2 TGT पोस्ट में 1 पोस्ट ऑलरेडी फिलअप है, एक फीमेल है, एक पोस्ट वैकेंट है, वो ओपन होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यही पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, what is the minimum prescribed disability under NVS enrollment policy for a candidate seeking admission lateral entry in class 11 on disability grounds दिव्यांग रिजर्वेशन। तो दिव्यांग रिजर्वेशन केस में क्लास 11 में जो प्रेस्क्राइब डिसेबिलिटी होगा वो ऑप्शन 40%, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 राइट, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यदि डिसेबिलिटी 40% होता है तो वहां पर दिव्यांग रिजर्वेशन में वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 को चलेंगे। व्हाट इज द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सीट्स इन क्लास 6 ऑफ JNVs टू बी फिल्ड बाय गर्ल स्टूडेंट्स? मिनिमम तो आपका सपोज 80 सीट्स है, सपोज 80 सीट्स है, ठीक है, तो उसमें मिनिमम कितना गर्ल स्टूडेंट्स? मिनिमम 40%, मिनिमम 1/3, मिनिमम 30%, मिनिमम 10%, मिनिमम 1/3। कभी कभी जहां पर 2 सेक्शन से 80 सीट्स होगा और जहां पर एक सेक्शन है वो 40 सीट्स होगा, मगर इसमें मिनिमम गर्ल स्टूडेंट, मिनिमम रिजर्वेशन फॉर गर्ल स्टूडेंट्स इज मिनिमम 1/3, याद रखिए। ठीक है, मिनिमम 1/3, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ JNVST फॉर लैटरल एंट्री एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू क्लास 9? जो क्लास 9 का जो लेस्ट एग्जाम होता है, लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, इसमें आप जानते हो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क में आपका मैथ्स होता है 35 मार्क, और साइंस होता है 35 मार्क, और इंग्लिश होता है 15 मार्क्स, और हिंदी होता है 15 मार्क्स, ये है ना। तो उसमें जो एग्जाम टाइमिंग है 2 आवर 30 मिनट्स है। ठीक है, और यदि दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए यहां पर एक्स्ट्रा 50 मिनट्स, जो डिसेबल स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा 50 मिनट्स दिया जाता है, मगर नॉर्मल टाइमिंग जो है 2 आवर 30 मिनट्स है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस प्रेस्क्राइब्ड फॉर अवेलिंग LTC ऑन द डेट ऑफ जर्नी? आप जानते हो जो न्यू रिक्रूट है वो जब ज्वाइन करते हैं उनका जो मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस 1 ईयर होना चाहिए, इसके बाद वो he or she is entitled for LTC। तो मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस इनिशियली 1 ईयर होना चाहिए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27, where an application for seeking information is made to a public authority which is held by another public authority, within how many days is the application transferred to that other public authority? सपोज एप्लीकेशन एक पब्लिक अथॉरिटी के पास गया मगर वो चीज को वो हैंडल नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को अदर पब्लिक अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, वो कितना दिन के अंदर हैंड ओवर करेगा? वो ये सोचेगा ये जो एप्लीकेशन आया है और उसके ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता और एक पब्लिक अथॉरिटी उसका जवाब देगा, तो वो ट्रांसफर कर देगा एप्लीकेशन। तो वो जब एप्लीकेशन रिसीव करेगा जो फर्स्ट पब्लिक अथॉरिटी, सो विद इन हाउ मेनी डेज ही कैन ट्रांसफर द एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी? आप रूल 6 देखिए RTI का, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप देख लीजिए, रूल 6, इसमें क्लियरली है 5 डेज। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द इंडियन लीगल सिस्टम फॉलोज ए प्रिंसिपल which means that all individuals and institutions are subject to and must abide by the laws. No one, including the government, is above the law. What is this principle called? तो लॉ के सामने सब समान है। हम ये नहीं सोचेंगे कि जो मिनिस्टर्स है कि जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर वर्किंग अबव द लॉ। नो, ऑल वन स्ट्रिक्टली अवॉइड द लॉज। सो ये जो है रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, जूरिस्प्रूडेंस, सिविल लिबर्टीज, सो रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29, करेंट ब्लॉक ऑफ एलटीसी फॉर होम टाउन 23, 24, 25, 26, 22, 23, 24, 25। हमारा ये जो ब्लॉक फर्स्ट 4 ईयर ब्लॉक देख लीजिए 2022 टू 25 था। तो जो 22, 23 था वो होम टाउन था, और ये जो ब्लॉक 24, 25 वो ऑल इंडिया है। क्लियर? ये जो 4 ईयर ब्लॉक पीरियड है 22 टू 25। ओके, फर्स्ट 2 ईयर्स 22, 23 होम टाउन, 24, 25 ऑल इंडिया है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, होम टाउन 22, 23। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, if any question arises relating to the interpretation of any rule contained in the Central Civil Service Conduct Rules 1964, which nodal authority should be approached for consideration and approval? Option: Ministry of Home Affairs, Ministry of Law. All such ministries or departments which were consulted when the specific rule was approved for implementation should be consulted. Cabinet Secretariat. तो उसमें इंटरप्रिटेशन जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का इंटरप्रिटेशन देखिए, तो यहां पर जो विच नोडल अथॉरिटी शुड बी अप्रोच्ड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, वो बेसिकली आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं की। पर यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑल सच मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स which were consulted when the specific rule was approved for implementation should be consulted. Option 3 is the correct answer. Question number 31, what is the maximum time limit of value of gifts or presents which a government servant holding a group A post could accept from his near relative or from his personal friends having no official dealings with him or any important occasion where exchange of such gift is a social practice? यहां पर आपका क्वेश्चन में गलत है, नो नहीं है, ये नहीं है, हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स दिया है। आप देख लीजिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, आप रूल 13 देख लीजिए, इसमें क्लियरली बेसिकली दिया है कि जो गिफ्ट और जो प्रेजेंट एक्सेप्ट करेगा ग्रुप ए ऑफिसर, उसका पर्सनल फ्रेंड्स और रिलेटिव से, मगर उनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं होगा। मगर आपको जो क्वेश्चन पूछ लिया कि हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स दे दिया, वो गलत है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ओके, यहां पर एक्चुअली हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स दिया है, ये नो नहीं है, ठीक है, मैं यहां पर नो को जोड़ दिया। तो उसमें दिया है कि आप आपका पर्सनल फ्रेंड्स और रिलेटिव से आप गिफ्ट ले सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा सेरेमनी है, कोई रिचुअल सेरेमनी है, ठीक है, ये केस में आप ले सकते हो कि कोई मैरिज सेरेमनी है, तो उसमें मगर यहां पर क्लियर मेंशन है कि द पर्टिकुलर ग्रुप ए सर्वेंट शुड नॉट हैव एनी ऑफिशियल डीलिंग विथ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। उनके साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं होना चाहिए। जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स से आप गिफ्ट ले रहे हो उनके साथ ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं होना चाहिए। मगर आपका क्वेश्चन में गलत है, उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 25,000, इससे ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है तो अप टू 25,000 आप ले सकते हो, जो ग्रुप ए ऑफिसर है वो ले सकता है, ठीक है। तो मोर देन 25,000 तो वो एक्चुअली अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट का। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो क्योंकि वहां पर हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, व्हाट इज द एडमिसिबल डेपुटेशन अलाउंस इन केस ऑफ डेपुटेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेशन। यहां पर देखिए दे दिया चेंज ऑफ स्टेशन। ये जो चेंज ऑफ स्टेशन है तो वहां पर आपको 10% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। पहले क्या था, ये था 9,000 था, मगर अभी इसमें आप 25% ऐड कर दो, इसका 25% ऐड कर दो, क्योंकि क्लियरली मेंशन है जब डीए 50% हो जाएगा तब ये जो 9,000 ना ये 25% हाइक हो जाएगा। तो बेसिकली चेंज ऑफ स्टेशन मींस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। विदिन स्टेशन, विदिन द सेम स्टेशन 5% ऑफ बेसिक पे, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ, पहले क्या था 4,500, बिफोर डीए 50%,
4500 था, इसमें भी 25% आप ऐड कर दो, ठीक है। ये जो है विद इन स्टेशन, यदि आपका डेपुटेशन में आप जा रहे हो, मगर आउट ऑफ स्टेशन आपका स्टेशन चेंज हो रहा है, तो आपका जो डेपुटेशन अलाउंस होगा 10% ऑफ बेसिक पे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 11,250। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, subject to exceptions, which of the following authorities is vested with the power to prescribe the form of service book of non-gazetted government servants? To prescribe the form of service book, देखिए, to prescribe the form of service book, चाहे गेजेटेड हो नॉन गेजेटेड हो, आप देख लीजिए सप्लीमेंटरी रूल SR 196 197 दोनों देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है दोनों में कि जो सर्विस बुक का फॉर्म है वो एक्चुअली किसका पावर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो C&AG एक्चुअली डिसाइड करेगा द फॉर्म ऑफ सर्विस बुक, बोथ गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। याद रखिए, यहां पर मैं थोड़ा रूल को भी मेंशन कर दिया, SR 196 में गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, जो फॉर्म ऑफ जो सर्विस बुक होगा, यू नो एक्चुअली देयर सर्विसेज एक्चुअली विल बी केप्ट बाय द ऑडिट ऑफिसर एंड इन सच फॉर्म एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में प्रिस्क्राइब, ओके। और ऑन SR 197 ये नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, एंड ऑल्सो सेम थिंग may prescribe service book in such form as the controller and auditor general may prescribe must be maintained, okay, for every non-gazetted government servant. Clear? So both actually form of service book actually decided by the C&AG, right? चलो, question number 34, what does the acronym SMART stands for? Specific, measurable, achievable, relevant, time bound, strategic, meaningful, accurate, relevant, timely, significant, measurable, aligned, realistic, time bound, सक्सेसफुल, मोटिवेटिंग, अटेनेबल, रिलायबल, ट्रैकेबल। तो इसमें देखिए स्मार्ट स्टैंड्स फॉर 1, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, subsistence allowance during the first 3 months of the period of suspension will be at an amount equal to, जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा फर्स्ट 3 मंथ्स ओके ऑफ सस्पेंशन में, बेसिकली जैसे आप सपोज हाफ पे लीव लेते हो, जैसे हाफ पे लीव लेते हो, जैसे आपको लीव सैलरी मिलता है इस वैसा ही, यानी इट मीन्स यहां पर भी बेसिक पे प्लस DA, इसका कितना मिलेगा, बेसिक पे का आप यहां पर कैलकुलेट कर दीजिए 50% ऑफ बेसिक पे, और इसके ऊपर ही आपको DA मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप देख लीजिए जैसे आपका कैलकुलेट होता है जब हाफ पे लीव जो आप लेते हो HPL, तो हाफ पे लीव में आपको हाफ लीव सैलरी मिलता है वैसा ही। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, लीव सैलरी व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन हैड ही बीन ऑन लीव लेस हाउस रेंट अलाउंस, नहीं हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जो मिलेगा आप याद रखिए जस्ट बिफोर सस्पेंशन जो HRA रेट था उसके हिसाब से आपको तो बेसिक पे के ऊपर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो बेसिक पे यहां पर 50% हो जाएगा, तो उसके ऊपर HRA मिलेगा, और जस्ट बिफोर सस्पेंशन जो रेट था वही मिलेगा। लीव सैलरी व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन हैड ही बीन ऑन लीव ऑन हाफ पे, यही करेक्ट है। लीव सैलरी व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन हैड ही बीन ऑन लीव लेस डियरनेस अलाउंस, ये नहीं है। लीव सैलरी व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन हैड ही बीन ऑन लीव इन द नॉर्मल कोर्स, ये नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपका 50% जितना बेसिक पे है उसका हाफ हो जाएगा, और ये जितना होगा उसके ऊपर आपको DA मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 36, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी लेवल ऑफ द चार्ज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट against whom disciplinary proceedings are proposed, a few nodal agencies or departments may have to be consulted. Which of the following departments are generally not associated in these proceedings unless the government servant is not serving in the said department? देखिए जब चार्ज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स प्रपोज होता है, कुछ नोडल एजेंसीज और डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट
किया जा सकता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर जनरली नॉट एसोसिएटेड, ऐसा कौन सा इसमें डिपार्टमेंट है जो इस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग रिलेटेड में एसोसिएट नहीं है, यदि वहां पर उस एक्चुअली डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट काम नहीं किया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये तो है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक विजिलेंस एंगल में वो तो चेक करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट होता है। तो जो ज्यादातर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो लिस्ट कंसर्न है, क्योंकि ज्यादातर वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट केस में बेसिकली SC ST OBC इनके लिए फाइट करता है। तो ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है इसमें लिस्ट कंसर्न होता है। आप बोलेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कभी कभी लेबरर्स के लिए हम इस डिपार्टमेंट को भी हम कुछ इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग केस में, तो उसका लिंक होता है, ठीक है। मगर इसमें लिस्ट कंसर्न है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ऑप्शन 3, ओके। जनरली दिस मिनिस्ट्री इज नॉट एसोसिएटेड in related to the disciplinary proceedings against the charged officer. So option 3 is the correct answer. Question number 37. Who is the banker to the government of India? The banker to the government, Reserve Bank of India. आप GFR रूल 85 देख लीजिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वेरी इजी है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38. डिटेल्ड प्रोसीज्योर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस फाइनेंशियल रूल्स 2017, क्या प्रोसीज्योर है कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस का? जो डिटेल्ड प्रोसीज्योर है इसमें कौन सा रूल GFR उसको डिफाइन किया है? रूल 35 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, रूल 26 ऑफ द GFR, रूल 23, रूल 29। यहां पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जो कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस है उसका जो डिटेल्ड प्रोसीज्योर है वो उसको रूल 29 डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्लियरली। तो यहां पर जो है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट दिया है जैसे रूल 35 है वो लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फायर, फ्लड एटसेट्रा। रूल 35 लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फायर, फ्लड एटसेट्रा। जो रूल 26 है, रूल 26 क्या डिफाइन करता है ना? रूल 26 बेसिकली रिलेटेड है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशन। कंट्रोलिंग ऑफिसर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशन। और जो रूल 23 आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। तो रूल 29 ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 को जाएंगे। इन डिपार्टमेंट्स where officers are required to receive money on behalf of the government and issue receipts, they should maintain proper account of the receipts in the form prescribed. Identify the form prescribed from the following. जो ऑफिसर्स मनी रिसीव करते हैं और वो जब मनी रिसीव करेंगे तो वो एक रिसिप्ट इशू करेंगे, तो दे शुड मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट ऑफ द रिसिप्ट। तो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेंगे कि कौन सा सोर्स है, किस डेट में मनी रिसीव हुआ, कौन सा सोर्स से रिसीव हुआ, डिटेल्स। और जो रिसिप्ट दिया गया, जो सोर्स से रिसीव हुआ, जो सोर्स को हम रिसिप्ट दे दिए उसको भी जो उसका रिफरेंस नंबर, किस रिफरेंस नंबर में हम उस रिसिप्ट दिया, जो बेसिकली सोर्स से हम जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने मनी रिसीव किया। तो ये जो है आप देख लीजिए गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट, ये है गार जो है गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट। अब गार 3 देखिए, ये एक्चुअली जो है वो बेसिकली आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर जो पे स्लिप होता है, गार 1 जो है ना ये पे स्लिप होता है, तो गार 3 जो है वो बेसिकली वहां पर मेंशन होता है कि क्या रिसीव हुआ, क्या पेमेंट हुआ। तो वो एक्चुअली जो कैश रजिस्टर होता है वो रिलेटेड टू गार 3, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर यहां पर, ठीक है। जो गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट 3 में, इसमें जब मनी रिसीव होगा वो पर्टिकुलरली जो लेजर में क्लियरली मेंशन होगा किस सोर्स से
रिसीव हुआ और कौन सा डेट, ये सब मेंशन होगा, और एक रिसिप्ट इशू किया जाएगा, उसमें रेफरेंस नंबर डाला जाएगा और वो भी रिसिप्ट रजिस्टर में मेंशन होगा। ठीक है, तो ये जो है गार 3 जो है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैश बुक एक्चुअली यही है, कैश बुक हैंडल, कैश बुक हम बोलते हैं गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, as per chapter 6, procurement of goods and services in the general financial rule 2017, what are the monetary limits of local purchase committee for purchase of any item not available on JAM? ये क्लियरली मेंशन है कि अभी JAM से मैंडेटरी है, हम परचेज करेंगे। सपोज जो प्रोडक्ट को हम प्रोक्योर करना चाहते हैं वो JAM में अवेलेबल नहीं है, तब इसमें वो लोकल परचेज कमिटी, आप LPC जो लोकल परचेज कमिटी GFR रूल 155 देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि 50,000 एंड अप टू 5 लाख लोकल परचेज कमिटी। लोकल परचेज कमिटी सपोज विद्यालय लेवल में 3 मेंबर्स होते हैं, वो मार्केट सर्वे करेंगे और एटलीस्ट 3 कोटेशंस लाएंगे। ठीक है, और वो स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ सेलर और उसका GST नंबर, ये सब कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो LPC जो लोकल परचेज कमिटी वो जाएंगे और मार्केट सर्वे करेंगे और एटलीस्ट 3 कोटेशंस लाएंगे। ठीक है, फिर उसको कंपेयर किया जाएगा, जिसका लिस्ट प्राइस होगा उसी से एक्चुअली कमोडिटी को प्रोक्योर किया जाएगा। मगर जो एस्टिमेटेड गुड है उसका जो सपोज प्रोक्योर एस्टिमेशन ऑफ गुड 50,000 एंड अप टू ₹5 लाख, वो एक्चुअली LPC में आता है। ठीक है, यदि जेम में अवेलेबल नहीं है तो जो गुड का एस्टिमेशन है इट मीन्स 50,000 एंड अप टू ₹5 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप रूल 155 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, which rule of general financial rules 2017 provides the detailed procedure for preparing an application for reappropriation of funds from one primary unit of appropriation to another primary unit? सपोज सेम जब मनी ग्रांट होता है तो उसी ग्रांट में क्या होता है, वन यूनिट प्राइमरी यूनिट से अनदर प्राइमरी यूनिट को मनी को अलोकेट, रीअप्रोप्रिएशन मींस अलोकेशन। ठीक है, तो वन यूनिट से अनदर यूनिट को अलोकेट कर दिया जाएगा मगर विद इन सेम ग्रांट। ठीक है, तो उसमें जो है ये कौन सा रूल है, GFR 2017 उसको एक्सप्लेन किया है। आप देखिए यहां पर रूल 65 सबसेक्शन 4, रूल 65 सबसेक्शन 3, रूल 65 सबसेक्शन 1, रूल 65 सबसेक्शन 2। आप ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। रूल 65 सबसेक्शन 1 आप देख लीजिए, GFR रूल्स, रूल 65 सबसेक्शन 1 में ये क्लियरली मेंशन है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ठीक है, subject to the provisions of rule 10 of the delegation of financial power rules and also subject to such other general or specific restrictions as may be imposed by the finance ministry in this behalf. Reappropriation of funds from one primary unit of appropriation to another such unit within a grant okay may be sanctioned. तो one unit से another unit को मनी को allocate किया जाएगा okay within a grant or appropriation। ठीक है, तो ये रूल 65 सबसेक्शन 1 ने डिफाइन किया है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, ऑल एस्टिमेटेड सेविंग्स नोटिस्ड इन द ग्रांट्स और अप्रोप्रिएशन शैल बी सरेंडर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द क्लोजिंग पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रूल इन द जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। अब देखिए कोई सेविंग, कोई मनी बच जाता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ग्रांट का मनी यदि सेव हो जाता है तब इमीडिएटली उसको बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एस्टिमेट्स इमीडिएटली उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सरेंडर कर दिया जाएगा। सपोज कोई डिफरेंट यूनिट से एक यूनिट में मनी सेव हो रहा है, तो अभी क्लोजिंग एक्चुअली फाइनेंशियल और क्लोज होने वाला है, अप्रोचिंग हो रहा है और वो पैसा को हम खर्च नहीं कर पाएंगे वो यूनिट में जो मनी सेविंग है, तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे ना, ड्यूरिंग द जो बिफोर क्लोजिंग हम उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हैंड ओवर करेंगे। तो इसको कौन सा रूल है जो डिफाइन किया है उसको देखिए, रूल 62 देखिए अब जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, ये क्लियरली मेंशन किया है कि कोई पर्टिकुलर यूनिट में मनी सेव हो रहा है
तो बिफोर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू जस्ट द डिपार्टमेंट मस्ट हैंड ओवर टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री. रूल ऑप्शन 2 is the correct answer. Question number 43. Which of the following is not to be termed as revenue receipt for the purpose of preparation of budget? इसमें कौन revenue receipt नहीं है? Revenue receipt neither creation of liability nor reduction of assets. ना गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी होगा, कोई फाइनेंशियल बर्डन होगा, ना गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस होगा. तो इसमें देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आल्सो इंटरेस्ट चार्ज टू कमर्शियल डिपार्टमेंट्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा. आरआर में ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि ये जो रिसीव कर रहा है, जो लोन्स एडवांसेस से जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, को कमर्शियल डिपार्टमेंट जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ना उसमें कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है, गवर्नमेंट के लिए कोई फाइनेंशियल बर्डन है, ना गवर्नमेंट का कोई असेट्स कम हो रहा है. सेंट्रल टैक्सेस ड्यूटीज एंड सेसेस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीबीडीटी एंड सीबीईसी, तो यहां पर जो ये जो टैक्सेस कलेक्शन करता है ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा. सेकेंड वन भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि उसमें ना गवर्नमेंट के लिए कोई फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो रहा है, ना असेट कम हो रहा है. एक्सटर्नल डेब्ट्स, ये एक्चुअली कैपिटल रिसिप्ट. ये एक्सटर्नल डेब्ट्स मींस बोरोइंग्स, हम बोरो कर रहे हैं मींस कैपिटल रिसिप्ट्स. क्यों है? क्योंकि क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, इसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में. क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, सो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी मींस ये एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल डेब्ट हम फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम अब्रॉड, इफ द गवर्नमेंट बोरो फंड्स देन ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक इन फ्यूचर. तो गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी, एक फाइनेंशियल बर्डन है, तो विथ इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे. तो ये क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी. क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी मींस वो कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट क्या है? आइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी और रिडक्शन ऑफ एसेट्स. मगर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी नॉर रिडक्शन ऑफ एसेट्स. लोकल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड अदर रिसिप्ट्स, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा. तो यहां पर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो यहां पर ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है. तो वही पूछा है, इज नॉट टू बी टर्म्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. For the purpose of CSMA rules, medical attendance rules, family of a government employee includes. इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फैमिली को आपको डिटेक्ट करना है. मेजर ब्रदर डिपेंडेंट ऑन हिम एंड लिविंग विथ हिम, ये नहीं होगा. मेजर ब्रदर डिपेंड कर रहा है मगर ये उसका फैमिली में नहीं आएगा. माइनर ब्रदर लिविंग विथ हिम, सो माइनर ब्रदर लिविंग विथ हिम मीन्स ये फैमिली में आएगा, इसको टिक लगाया. चिल्ड्रन ऑफ मैरिड सिस्टर, मैरिड सिस्टर का चिल्ड्रन नहीं आएगा. चिल्ड्रन ऑफ मैरिड डॉटर, तो इसमें ये नहीं आएगा. मैरिड डॉटर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय बट नॉट लिविंग विथ हिम. तो सभी समय याद रखिए, जो डिपेंडेंट है वो बेसिकली एम्प्लॉय के साथ रिजाइड करना है. द डिपेंडेंट मस्ट रिजाइड विद द एम्प्लॉय. मगर यहां पर क्या है? मैरिड डॉटर तो डिपेंड कर रहा है बट नॉट लिविंग विथ हिम, तो ये नहीं होगा. तो यहां पर जो फैमिली में इंक्लूड होगा माइनर ब्रदर लिविंग विथ हिम. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Question number 45. What degree of permanent disability has been prescribed for extension of medical facility to dependent brother under CSMA rules? Again medical attendance rules. जो dependent brother है उसका कितना डिग्री ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए जो उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा? बहुत ईजी है ये, 40% एंड मोर. 40% एंड मोर. यदि वो जो ब्रदर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो डिसेबल है और उसका जो परमानेंट डिसेबिलिटी है 40% और मोर है, उसके लिए आप मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑप्शंस इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन एनवीएस? कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में आप देखिए, कोई एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है नवोदय विद्यालय समिति में, तो जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है वो क्या, उसमें कंडीशंस क्या है, यही पूछा है. ओनली डिपेंडेंट्स ऑफ एनवीएस एम्प्लॉइज हु डाइड व्हाइल इन सर्विस आर एलिजिबल. ये तो ठीक है. जो एनवीएस एम्प्लॉय का डेथ हुआ, जो उसका डिपेंडेंट को एक्चुअली सर्विस के लिए वो एलिजिबल है. The family must be in a state of penury and without any other means of livelihood. ये नहीं होगा. ये बोल रहा है कि द फैमिली पॉवर्टी कंडीशन में है और उसका कोई एनी अदर लाइवलीहुड इट मीन्स फैसिलिटीज नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है. सच अपॉइंटमेंट्स आर लिमिटेड. ये जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है
Such appointments are limited to a maximum of 10% of vacancies falling under direct recruitment. जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो ग्रुप सी पोस्ट का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसका 10% सीट एक्चुअली कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्व रहता है, याद रखिए। ओनली ग्रुप सी पोस्ट, ग्रुप सी पोस्ट का जो बेसिकली उसका जो वैकेंट सीट्स है उसका 10% एक्चुअली रिजर्व रहेगा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। तो मुझे तो यहां पर करेक्ट पूछा है मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, with regard to the inordinately long time taken to act on the complaints received under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, has any advisory been issued on the time to be taken in dealing with the complaints? Indicate the maximum time that could be taken to complete inquiry on such complaints. तो आप देखिए पोस्ट एक्ट देखिए 2013, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में क्लियरली मेंशन है कि जो मैक्सिमम टाइम होता है इंक्वायरी कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट होगा। और इसमें और 2 ऑप्शन में दे देता हूं कि जब कंप्लीट होगा, जब इंक्वायरी कंप्लीट होगा, इंक्वायरी ऑफिसर 10 डेज में, विद इन 10 डेज, ओके, जस्ट कंप्लीट होगा, उसका 10 डेज के अंदर वो रिपोर्ट दे देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब रिपोर्ट रिसीव करेगा इंक्वायरी ऑफिसर से, वो 60 डेज के अंदर डिसीजन लेगा कि किस तरीके का पेनल्टी लगेगा, वो डिसीजन लेगा। इसमें और 2 चीज में ऐड कर दिया, तो यहां पर जो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following statement is not correct? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। In relation to the complaints committee constituted in each ministry or department to deal with the cases of sexual harassment of working women and create awareness as per direction of Supreme Court in the case of Visakhapatnam and others versus state of Rajasthan and others, again पोस्ट एक्ट के ऊपर है। तो इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। द कंप्लेंट कमिटी शुड बी हेडेड बाय वोमेन, ये तो करेक्ट है। सभी समय जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होता है उसका हेड इट मीन सीनियर जो वोमेन, जो सीनियर वोमेन एम्प्लॉय है, ठीक है, वही रहेगा। तो आपको याद रखिए इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में आपका जो ऑफिस में जो सीनियर, ठीक है, वोमेन एम्प्लॉय है वही रहेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अनड्यू प्रेशर और इन्फ्लुएंस फ्रॉम सीनियर लेवल्स, such committees should involve a third party, either NGO or any other body who is familiar with the issue of sexual harassment। ये भी ठीक है, एक थर्ड पार्टी रहता है, इसमें एक हेड हो जाएगा प्लस 2 एम्प्लॉइज रहेंगे, सेम एक्चुअली ऑफिस का 2 एम्प्लॉइज रहेंगे, दोज 2 एम्प्लॉइज आर फैमिलियर विद द बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट। और बाकी एक थर्ड पार्टी के हिसाब से कि आइदर एनजीओ और एनी अदर बॉडी हु इज फैमिलियर विद द इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये ठीक है। द कमिटी शुड एसोसिएट सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, द कमिटी शुड एसोसिएट, ये नहीं है। आप देखिए जो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है उसमें एक मेंबर तो हो गया बेसिकली जो हेड हो गया, तो हेड मीन्स सीनियर वोमेन ऑफिसर, ओके, ऑफ द ऑफिस। अनदर 2 एम्प्लॉइज हु आर फैमिलियर विद द सेक्सुअल हरासमेंट। और एक हो गया जो बेसिकली थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी हो गया, टीएचपी कर दिया, थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 50% कौन रहेंगे? वोमेन मेंबर्स एटलीस्ट, ठीक है। नॉट लेस देन हाफ ऑफ द कमिटी शुड बी वोमेन, ये भी ठीक है। तो बेसिकली जो यहां पर नॉट करेक्ट है ऑप्शन 3, द कमिटी शुड एसोसिएट सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ये जो कमिटी है वो एसोसिएट रहे, ऐसा कुछ विशाखा गाइडलाइंस में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो यहां पर जो है इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, ऑप्शन 3, ठीक है। थोड़ा मैं इसके ऊपर आइडिया दिया, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 49, आज रिगार्ड्स ऑफर प्राइस ऑन जेम पोर्टल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अगेन हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। ए ब्रेकअप ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्राइस शुड बी अपेंडेड to provide a comparison that the offer price works out at least 10% less than the maximum retail price. The seller can offer goods or services
with uniform all inclusive unit price on all India basis or for specified locations at the time of product listing. The prices of the offered goods or services shall be firm and fixed at any point of time. The price shall be indicated in Indian currency for each accounting unit. यहां पर चारों में नॉट करेक्ट देखिए ऑप्शन 3 वो बोला है यहां पर क्या है द प्राइसेस ऑफ द ऑफर्ड गुड्स और सर्विसेज शैल बी फर्म एंड फिक्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. नो एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो प्राइस फिक्स रहेगा ऐसा नहीं, प्राइस चेंजेस होता है. कभी कभी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में प्राइस बढ़ जाता है, डिफ्लेशन में प्राइस कम हो जाता है. तो ये ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट. ऑप्शन 3 करेक्ट नहीं है. अदर 3 ऑप्शंस आर करेक्ट वन. ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट वन. क्लियरली मेंशन है, बहुत इजी भी है जेम पोर्टल रिलेटेड में. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. A new versatile ICT information and communication technology based system has been introduced in chapter 4 of the General Financial Rule 2017, which will streamline the work of sanction preparation, bills processing, payment, receipt management, direct benefit transfer, DBT जिसको बोलते हैं, fund flow management and financial reporting, everything. Identify the rule. देखिए आप PFMS को देखिए, PFMS आप रूल 86 आप देख लीजिए. जो रूल 86 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें क्लियरली मेंशन है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. देखिए अभी पीएफएमएस में हमारा सब कुछ सैलरी जो पेमेंट होता है, कोई पार्टी को हम पेमेंट करना है पीएफएमएस माध्यम से पेमेंट करेंगे. तो यही इसी रिलेटेड है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं सैंक्शन, कितना मनी सैंक्शन हुआ. पीएफएमएस में हम देख सकते हैं बिल प्रोसेसिंग करेंगे, पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फंड फ्लो मैनेजमेंट, एवरीथिंग. सो ये रूल 86 आप देखिए जीएफआर का. पीएफएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर आप जीएफआर रूल 86 आप देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है. तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51. Which minimum rank of officer in the government of India has been described to be declared as head of the department in the general financial rules? Under secretary, deputy secretary, section officer, accounts officer. Which minimum rank of officer? Which minimum rank of officer should be declared as a head of the department? HOD. जो minimum rank of officer, जो minimum rank होना चाहिए, जो head of the department होगा, आप ये बहुत अंडर सेक्रेटरी. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Question of 52. For the purpose of providing a speedy trial, the state government shall designate a special court in consultation with which of the following authorities? तो जो स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली स्पीडी ट्रायल के लिए कुछ ऐसा केसेस है, वो लॉन्ग पेंडिंग केसेस है, सिंस एक्चुअली प्रोलॉन्ग ऑफ टाइम्स, एक्चुअली सो मेनी केसेस स्टिल नाउ इट मींस हैव नॉट रिजॉल्व्ड. तो इसलिए वो किसको अप्रोच करेगा स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशल कोर्ट बेसिकली सेटअप करके वो स्पीडी ट्रायल करेगा जो पेंडिंग केसेस है. वो किसके साथ कंसल्टेशन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हाई कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ऑप्शन 3 हाई कोर्ट. तो इस केस में एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेड विथ हाई कोर्ट एंड देन एक्चुअली सेट अप सम स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. Question number 53. Every nomination made and every notice of cancellation given by government servant shall take effect from which of the following date? यदि आप कोई नॉमिनेशन चेंज किया तो नॉमिनेशन जब आप चेंज करोगे आप तो हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म करोगे कि मेरा ये नॉमिनेशन था, ये नॉमिनेशन नहीं होगा, मैं नॉमिनेशन को चेंज करना चाहता हूं. कि आप एक नोटिस दिया था उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो ये कब से इफेक्ट होगा? तो जब एक्चुअली डेट ऑफ रिसिप्ट बाय हेड ऑफ ऑफिस, आप नॉमिनेशन चेंज किया, वो फॉर्म आप सेंड कर दिया, और जब हेड ऑफ ऑफिस उसको रिसीव करेगा, जिस डेट में रिसीव करेगा उसी डेट से एक्चुअली आपका नॉमिनेशन चेंज हो जाएगा. कि सपोज आप कोई नोटिस भेजा और उसको हेड ऑफ द ऑफिस, सपोज उसको आप कैंसिल करना चाहते हो, तो जिस डेट में हेड ऑफ ऑफिस वो नोटिस को रिसीव करेगा उसी डेट से एक्चुअली वो उसको कैंसिल करेगा आपका अप्रोच से, मगर डेट ऑफ रिसिप्ट बाय हेड ऑफ ऑफिस. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. As per Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, again Post Act, within how much period of completion of inquiry by Internal Complaint Committee may the report of its finding be made to the employer?
तो कितना दिन के अंदर वो एक्चुअली रिपोर्ट को सबमिट करेगा. As per sexual harassment of women at workplace, within how much period of completion of inquiry by ICC may the report of its finding be made to the employer? It is 7 days, 10 days, 21 days, 15 days. तो इसमें आप देखिए बेसिकली ये 10 डेज होता है. जब आपका कंप्लीट हो जाएगा इंक्वायरी तो उसका 10 डेज के अंदर वो एक्चुअली रिपोर्ट दे दिया जाएगा. ठीक है, जो इट मीन्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट दे दिया जाएगा. तो यहां पर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. राइट. क्वेश्चन नंबर 55. As per JNV's revised procedure for condemnation and disposal of articles, what lifespan DOM computer terminals has been fixed? तो कंडेमनेशन डिस्पोजल के लिए जेएनवी का जो रिवाइज्ड कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल प्रोसीजर है, क्या लाइफ स्पान है जो कंप्यूटर टर्मिनल्स का, क्या उसका लाइफ स्पान है? उसका लाइफ स्पान 5 ईयर्स है. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 56. How many members have been prescribed for the committee for write of books in JNVs? ठीक है, तो कितना मेंबर्स कमिटी रहेंगे फॉर राइट ऑफ बुक्स इन JNVs? 5 मेंबर्स. देखिए सपोज 5 मेंबर्स में बता देता हूं. यहां पर प्रिंसिपल हो गया, देन वीपी हो गया, देन लाइब्रेरियन हो गया, देन स्टोर कीपर हो गया. ठीक है, और देन मेंबर ये तो चेयरमैन है, और ओएस हो गया, ये मेंबर सेक्रेटरी. ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स होते हैं. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर CSMA रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 फॉर सबमिशन ऑफ फाइनल क्लेम फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस? तो रिइंबर्समेंट के लिए जो फाइनल क्लेम होता है रिइंबर्समेंट के लिए, तो क्या टाइम लिमिट है कि within this time limit actually the concerned employee must submit the bill okay for reimbursement? तो ऑप्शन 4, टाइम लिमिट इज 6 months, within 6 months. ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. सब्जेक्ट टू कंडीशंस, what is the amount of each award for passing the Pragya examination through training classes under Hindi teaching scheme effective from 2011 to an employee who scores more than 80% marks? तो ट्रेनिंग क्लासेस में जो प्रज्ञा एग्जामिनेशन है हिंदी में आप कितना परसेंट मार्क सिक्योर करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा. तो यहाँ पर हु स्कोर्स 80% मार्क्स, जब आपको 80% मार्क मिलेगा ट्रेनिंग क्लासेस में जो प्रज्ञा एग्जामिनेशन है हिंदी रिलेटेड एग्जामिनेशन, तो उसमें जो अवार्ड मिलेगा वो 3000 है, ₹3000. ओके, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. अंडर सेक्शन 115 BSc जो न्यू टैक्स रिजाइम है, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड HUF एंड अदर्स फॉर द टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 बिटवीन 9 लाख टू 12 लाख द टैक्सेबल इनकम वुड बी एट द रेट ऑफ, मैं आपको बताया था जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है ये था 3 to 7 लाख था 5%, 7 to 10 लाख था 10%, 10 to 12 लाख था 15%, फिर 12 to 15 लाख था 20%, ग्रेटर देन 15 लाख था 30%. ये था. तो आपको दिया है 9 लाख टू, तो ऑब्वियसली 15% होगा, मगर इसमें एक कंफ्यूजन होता है जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया, क्योंकि यहाँ पर 10 to 12 लाख 15% है, 7 to 10 लाख 10% है, मगर 9 to 12 लाख दे दिया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर 15%. मगर ये 9 लाख नहीं होगा, ये 10 to 12 लाख. इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, ये 10 to 12 लाख. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो 60 क्वेश्चंस था एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के ऊपर, ये लास्ट क्वेश्चन है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल बिकम एंटाइटल्ड फॉर इंक्रीमेंट ऑन कंप्लीटिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ सर्विस इन द 6th पे कमीशन. 6th पे कमीशन में आपका जो इंक्रीमेंट लगता था वो जुलाई 1 था, एक ही यूनिफॉर्म डेट था.
ठीक है, जब आप 6 मंथ्स और मोर, ये ऑप्शन करेक्ट है। जब आपका ग्रेटर देन 6 मंथ्स हो जाएगा, 6 मंथ्स और मोर, इसमें याद रखिए ऑप्शन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो एक ही यूनिफॉर्म डेट में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो यदि आपका जो सर्विस है 6 मंथ्स और ग्रेटर देन 6 मंथ्स होगा तो इसी डेट में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। एक ही यूनिफॉर्म डेट था, अभी तो 2 डेट है, जनवरी 1 और जुलाई 1। जिस डेट में आपका 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, मगर उस समय एक जुलाई 1 ही डेट था और इसी डेट में आपका सर्विस 6 मंथ्स और ग्रेटर देन 6 मंथ्स होना चाहिए, जो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, जो 3% हाइक होता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो माय फ्रेंड्स, आज इतना ही था। तो ये 60 क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया, तो आप देख लीजिए, उसमें भी कुछ फॉल्ट में डिटेक्ट किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। जो अदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस में भी डिस्कस करूंगा, आप वेट कीजिए। तो वेरी नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस ओके सेम जो वाइस प्रिंसिपल एग्जाम एलडीसी कंडक्टेड बाय एनवीएस, ओके, तो उसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पोर्शन को मैं नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा। ओके, आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।